Union Cabinet has accepted a high-level committee's recommendations on One Nation, One Election for holding simultaneous polls for the Lok Sabha, state assemblies and local bodies in a phased manner after a countrywide consensus-building exercise. Ashwini Vaishnav has announced that the move to, in fact, accept the proposal, of course, happened and it would be done in two phases. In the first phase, Lok Sabha and assembly polls will be aligned, and in the second phase, which will be held within 100 days of the first, local body elections will be covered. The Ramnath Kovind committee had recommended 18 constitutional amendments, most of which will not need ratification by state assemblies. However, these would require certain constitutional amendment bills that would have to be passed by Parliament. Let's listen into reactions that have come in to this big development. आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है. हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे. जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो. बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो. और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है. Decision by Prime Minister Narendra Modi ji will further consolidate and strengthen our nation building and federalism, but it will also very importantly reclaim the original spirit and sanctity of our constitution as given to us by Dr. Baba Saheb Ambedkar and other architects. When Prime Minister Narendra Modi ji abrogated Article 370, it re-established the original ideals of our constitution, which was betrayed by the Congress party. Similarly, simultaneous polls was always envisaged by our architects of our constitution. During the Constituent Assembly debates, there were many debates on uniform civil code or adult franchise, but there was no debate on simultaneous polls because our founding fathers believed that synchronous simultaneous polls was the way to go forward. But the great founding fathers and mothers never foresaw that somebody like Indira Gandhi's Congress will ruthlessly topple democratically elected governments and throw constitutional norms to the winds. So if you see, from 1952 to 67, there were simultaneous polls in the country. उसका भी हमने स्वागत किया है. जो बार बार चुनाव आते हैं, बार बार सब मशीनरी लगती है, मैन पावर लगते हैं, पैसे सरकार के खर्च होते हैं और चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद विकास के प्रकल्प बंद हो जाते हैं, विकास प्रकल्प ठप्प हो जाते हैं. इसका जो परिणाम है विकास के ऊपर होता है. और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये लोगों के लिए, जनता के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी है. उसका मैं स्वागत करता हूँ. 2 दिन से यहाँ मैंने जलसे किए हैं, मीटिंग्स करी हैं. जो माहौल है, जो वर्कर्स में आज ऊर्जा है और ताकत है, उसे देखकर मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ जब परिणाम आएंगे तो अलायंस की सरकार बनेगी. आज मैं रजौरी में हूँ. इफ्तिकार जी हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पार्टी ने मैंडेट दिया है और सभी लोग, हर मजहब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज बढ़ चढ़ कर इनको सपोर्ट कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोशिशें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की,
वो नाकामयाब होंगे। और बीजेपी को अगर इतना शौक था, जब लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने वैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि बड़ा चुनाव था। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। वो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए, यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के हालात उनके नहीं हैं। और यहाँ पर अलायंस का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। लगती है तो आचार संहिता लगती है, पूरे डेवलपमेंट वर्क स्टॉप हो जाते हैं। इस वजह से एक अच्छा विचार है ताकि प्रगति चालू रहे, लोगों को ये कोई दुविधा न हो, सुविधा, लोगों की जो सुविधा बनाई जा रही है लोगों के, उसमें कुछ बाधा न हो। देखिए कांग्रेस हमेशा ऐसे करती है कि जीएसटी भी उन्होंने ही लाने का प्रस्ताव दिया था, बाद में उसको विरोध भी किया था। उनका माइंड कंफ्यूज्ड है, इसीलिए लोगों ने उनको निकाल दिया है। पॉलिटिक्स में उनका आज भी अस्तित्व बहुत कम हो रहा है। बाहर जाते हैं, अपने देश के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। क्या ये सही है? अपने देश का अभिमान होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें उनको एक खुद पे नियंत्रण करना चाहिए और ऐसी वाली स्टेटमेंट्स नहीं करनी चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.